Hello everyone, I am Devesh Sarkar, Assistant Professor, GH Raisoni Institute of Engineering and Technology, Nagpur. Welcome to our wonderful solar PV plant. This is RGI Solar Park. The total plant installed capacity is 172.5 kilowatt, which is further divided into two locations in our campus. One is 60 kilowatt and another one is 112.5 kilowatt. This plant is installed by M Plus Solar Company, which is one of the topmost distribution solar energy company. Let us talk about some history. In 1839, Alexander Edmond Becquerel discovered the photovoltaic effect, which explain how electricity can be generated from the sunlight. He claims that shining light on an electrode submerged in a conductive solution would create an electric current. After that, in 1953, Gaylord Pearson begins research into lithium silicon photovoltaic cell. After that, one memorable day is come, where on April 25th, 1954, Bell's Lab announces the invention of the first practical silicon solar cell, which is on country United States, city Murray Hills, and state is New Jersey. We know very well about Sun. Sun is a G2V star. G2 stands for surface temperature and V stands for main sequence star. The temperature of the surface of Sun is 5778 degree Kelvin, and it currently fuses about 600 million tons of hydrogen into helium every second, converting 4 million tons of matter into energy every second. As a result, this energy, which can take between 10,000 to 1,70,000 years to escape from its core, that is the source of sun's light and heat. One very important parameter, which is solar constant. So, what is solar constant? What is solar flux? Solar constant, you know very well. Solar constant, this is the amount of energy received in unit time on a unit area perpendicular to the sun's direction at the mean distance of the earth from the sun. According to NASA, National Aeronautics and Space Administration, 1368 watt per meter square is the irradiation which is coming from the sun at the earth's atmosphere. NASA says that 1368 watt per meter square is the solar irradiation. First, I clear one thing: radiations having two types. One is diffuse radiation and another one is beam radiation. What is diffuse radiation? Diffuse radiation means after changes the direction of sun's radiation and scattering by the atmosphere is diffuse radiation, and beam radiation means direct radiation. Okay. So, let us come with me to study the solar PV plant. So, first of all, I am going to this panel. See, this portion we call as purlin, and below this panel this one structure is there. This structure is called as rafter. Okay, and above this purlin, this panel is installed. Okay, this is the mounting structure of one solar panel. So, what is that base? This base plate. This is the base plate. Okay, and this is the mounting structure which is somewhat inclined. Okay, why inclined? Solar photovoltaic needs true south. Solar photovoltaic needs true south, and what is the true south and what is the magnetic south, that I explain later. This panel is having some tilt angle. Let's see how much tilt angle. Let's see. I put this mobile here and check. Here is shown 16 degree. 16 degree is showing here. It means this 16 degree inclined, this panel means if I check from here at the base, okay, then
the tilting angle of a panel and in between this base is 16 degree. Now I am showing you the mounting structure. This is the module width. This is the module width. This is the tilting angle. This one is the module width. This one is the height difference. This one is the height difference. And from this instant to this instant, we can say that this is the row width. Okay, and this is the module row spacing. Now, if I want to find the height difference, then what is the height difference? This is the height difference. If we have to find this height difference, then height difference is equals to sine of tilting angle multiply with module width. Height difference is equals to sine of tilting angle. Sine of tilting angle means what? This one is the tilting angle multiply with module width. This is the height difference. Suppose if you have to find the module row spacing. What is the module row spacing? This is the module row spacing. If you have to find the module row spacing, then what is the formula of module row spacing? Module row spacing is equals to height difference divided by tan of elevation angle. Now the question, what is elevation angle? Then the elevation angle is this. When sun's radiation is coming and it cross from this instant like this, and that sun's radiation is fall into this instant, so this angle is formed like this. This angle is formed, that is called as elevation angle. So due to this, I explained you regarding this mounting structure of solar PV system. Let's see the combination of solar cell in this module. Here we have series of 6 solar cells, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. We can say that series of these 6 solar cells is a string. So like this we have number of strings in this panel 1, 2, 3 so on up to 10. So we can say that 10 multiply with this 6, we get 60 cells in a string, 60 cells in this module. Okay. Now we are going to see this pyrometer, how this pyrometer works, what is the working of this pyrometer, and why this pyrometer we kept here. Okay, how this pyrometer sends the sunlight from the sun. Now I am going to explain you the function and description of pyrometer. पायरोनोमीटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है सोलर फोटोवोल्टिक का, क्योंकि ये पैरामीटर जो है ये रेडिएशन को मेजर करता है। ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारे सरफेस पे पड़ी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन ये देता हूँ कि पायरोनोमीटर होता क्या है। पायरोनोमीटर इज व्हाट? Pyrometer is used to measure solar irradiation on a planar surface. Pyrometer is used to measure solar irradiation on a planar surface, and it is designed to measure. And what is designed? And it is designed to measure solar radiation flux density, जिसका यूनिट होता है watt per meter square. जिसका यूनिट होता है watt per meter square. It is also designed to measure solar radiation flux density watt per meter square from a hemisphere. From what? From a hemisphere above within a wavelength which ranges from 0.3 micrometer to 3 micrometer. It is have above within a wavelength of how much? 0.3 micrometer to 3 micrometer. Okay, इतना तक इसका wavelength होता है। ये क्या है आपका पायरोनोमीटर। अब पायरोमीटर का फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सी, ये तो आपको मालूम चल चुका है, ये आपका जो इरेडिएशन को मेजर करता है। अब ये पायरोमीटर कनेक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे साथ में
जो कि 1100 AH की बैटरी है मेरे पास, 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है मेरे पास, बहुत ही 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है मेरे पास, पायरोनोमीटर है मेरे पास, 1800 वैट पर मीटर स्क्वायर का पायरोनोमीटर है मेरे पास, ठीक है, 1800 वैट पर मीटर स्क्वायर का, इट इज ह्यूज, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। ये एनालॉग पैरामीटर है, इसकी जगह में एक और होता है, डिजिटल पैरामीटर भी होता है, बट एनालॉग पैरामीटर से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट डिजिटल पैरामीटर में हमें उतना कुछ सीखने नहीं मिलता, क्योंकि वो बस एक वैल्यू शो करता है, लाइक दिस, इस तरह का पैरामीटर होता है, इस तरह का होता है पैरामीटर, हो भी सकता है, इट इज ए वोल्टमीटर, ठीक है, इट इज ए वोल्टमीटर एमीटर, बट इस तरह का ही होता है पैरामीटर, बट हम जनरली एनालॉग का यूज करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बट आपको डिजिटल में उतना कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एनालॉग की बात करूँ तो इस एनालॉग में कितना मतलब इज लाइक ये पैरामीटर को आप देख रहे हो, तो इसका जो ऊपर का सरफेस होता है यहाँ, ये आप देख रहे हो, दिस इज द ग्लास डोर, यहाँ पर होता है ग्लास डोर, क्या होता है आपका ग्लास डोर, ओके। ये जो पार्ट है आपका, ये लेवलिंग के लिए होता है, ओके, एंड ये इसके साथ वायर होते हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग कैसे करता है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लिया आपने, अब इसका वर्किंग सुनो। ये पायरोमीटर के अंदर में क्या होता है कि ऊपर में एक प्लेट होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इसके ऊपर में एक होती है प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो उस प्लेट को हम T1 बोलते हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर में एक और प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं मेटल कंडक्टर, जिसको हमने बोला T2, ऊपर वाला है सरफेस आपका T1 एंड नीचे वाला सरफेस है आपका T2, ऊपर वाला सरफेस आपका टेम्परेचर T1, नीचे वाला सरफेस आपका टेम्परेचर T2, ओके। अभी हुआ क्या कि ये ऊपर वाला जो आपका प्लेट है जिसको आप बॉडी टेम्परेचर बोल रहे हो, ये बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू मेटल कंडक्टर हॉट होता है एट इनिशियल कंडीशन। ये जो इसके अंदर में एक हिडन प्लेट लगी हुई है, उसमें तो कोई रेडिएशन नहीं आ रही, उसमें तो कोई सन की इंटेंसिटी नहीं आ रही, पूरी इंटेंसिटी पूरी सन रेज किसके ऊपर पड़ रही है, पूरी इंटेंसिटी एंड पूरी सन रेज वो पड़ रही है इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर, एंड इस सरफेस के ऊपर में जो प्लेट हमने बोला है कि यहाँ पे जो ऊपर का आप डोम देख रहे हो, इस प्लेट को हमने क्या बोला है टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2, मतलब जो भी हीट सबसे पहले आएगी वो इसी पे पेनिट्रेट होगी, वो इसी पे रीच होगी, ओके। अभी मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, हॉट हो गया, ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट अंदर वाला जो है उसका टेम्परेचर तो कम ही रहेगा, उसका टेम्परेचर कम क्या, टेम्परेचर जीरो ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि नीचे में जो आपका T1 टेम्परेचर T1 प्लेट लगी है एंड ऊपर में जो T2 प्लेट लगी है, दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर वाला जो प्लेट है उसका दैट हैविंग समवट टेम्परेचर, व्हेन जो बट इसके अंदर में जो प्लेट लगी हुई है उसको टेम्परेचर है ही नहीं, मींस T2 हैविंग सम टेम्परेचर बट T1 इज हैविंग नो टेम्परेचर, मतलब जीरो टेम्परेचर, तो इट शोज व्हाट, इट शोज समवट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब सन की लाइट पड़ती है इसके ऊपर में एंड इस T2 प्लेट के ऊपर पड़ती है और ये T1 मेरा जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर करंट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, T2 हैविंग सम टेम्परेचर, T1 इज जीरो, अभी वो जो T1 टेम्परेचर है जो कि अंदर वाला प्लेट है, उस अंदर वाले प्लेट को हमने क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया, हमने क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया। देखो ये वायर दिख रहा है, ये वायर को लगा रहा हूं यहाँ पर मैं, ये वायर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं इस T1 टेम्परेचर को इंटरनल टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है उसको सप्लाई देने के लिए मैं इस सप्लाई देने के लिए मैं ये एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको वर्किंग करके। जैसे ही एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू मैंने T1 टेम्परेचर को सप्लाई दिया तो मेरा T1 टेम्परेचर क्या करेगा, T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा। ये जो T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर जो नीचे में लगा हुआ टेम्परेचर T1, ये T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा, सपोज T2 हैविंग सम टेम्परेचर, सपोज एग्जांपल T2 हैविंग सम 40 डिग्री टेम्परेचर एंड T1 क्या करेगा, T1 को ये सप्लाई
जैसे ये T1 इस T2 को मैच कर लेगा, मतलब ये T1 जब इसके पैरेलल में आ जाएगा, मींस 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, तो 40 माइनस 40 कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 40 माइनस 40 कितना हुआ? 0। तो इसके अंदर में जो एक डिफ्लेक्शन लगाया हुआ है, मतलब इसके अंदर में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस समय वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस टाइम में वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसी टाइम में वो उस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर आया था 40 डिग्री से सेव कर लेगा। सेव कैसे किया? क्योंकि T1 उतने टेम्परेचर तक रीच हुआ, T1 उतने T2 के टेम्परेचर तक रीच हुआ, तो हमने उस T1 के टेम्परेचर को सेव किया। मतलब हमने क्या किया? हमने T1 टेम्परेचर को इतना बूस्ट किया कि वो T2 टेम्परेचर को जो है कैच कर पाए, T2 टेम्परेचर तक रीच हो पाए। और जैसे वो T2 टेम्परेचर तक पहुंच गया और गैल्वेनोमीटर ने बोला, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब ये होता है कि T1 उस T2 टेम्परेचर के उतना पहुंच चुका है। हमें वही होना, एक्चुअली मुझे इनडायरेक्टली क्या होना? मुझे T2 टेम्परेचर होना, बट मैंने T1 को जो है T2 तक बूस्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि T1 कितना बूस्ट हुआ? T1 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ, T1 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ, तो T2 भी उतना ही 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ होगा। तो T1 आपको 40 डिग्री मिला, इसका मतलब आपको एक्चुअली टेम्परेचर कितना मिला? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पायरोमीटर। दिस पायरोमीटर इज एक्टिंग एज अ थर्मोकपल। इसमें दो प्लेट होते हैं, एक ऊपर में होता है आपका T2 प्लेट एंड नीचे में होता है आपका T1 प्लेट एंड बीच में होता है आपका गैल्वेनोमीटर। जब सन की इंटेंसिटी इस T2 लेयर पे पड़ती है, तो ये T2 लेयर मेरा हीट अप होता है एंड T1 लेयर मेरा इनिशियल कंडीशन में 0 रहता है। सपोज T2 लेयर मेरा कितना भी मेरा समवट उसका टेम्परेचर आया होगा, एग्जांपल 10 डिग्री टेम्परेचर आया होगा, तो हम इस एक्सटर्नल कनेक्शन के थ्रू इस T1 को उस T2 के इतना रीच कराते हैं, मतलब T2 के इतना बूस्ट अप कराते हैं उस टेम्परेचर को, तब मुझे समझ में आता है कि वो T2 तक पहुंच गया है। मतलब कैसे? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके बीच में, तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही दोनों को मैच करेगा, मतलब T2 जब T1 की इतना हो जाएगा या T1 T2 की इतना हो जाएगा, तो वो उस समय गैल्वेनोमीटर स्टॉप करेगा एंड स्टॉप करके उतना टेम्परेचर सेव कर देगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द वर्किंग, हाउ दिस वर्किंग इज हैपन। लेट्स सी। ये पायरोमीटर के 3 वायर्स होते हैं। एक होता है आपका ब्राउन, सेकंड होता है आपका ब्लैक एंड थर्ड होता है आपका ब्लू। ये मैं आपको बताता हूँ। ये पायरोमीटर है, इस पायरोमीटर को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, इस पायरोमीटर को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा आर्टिफिशियल सन है, दिस इज द आर्टिफिशियल सन, सन रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, दिस इज आर्टिफिशियल सन। अब ये आर्टिफिशियल सन को ये फोकस करेगा, कौन? ये पायरोमीटर, ठीक है। अभी ये डोम पे जो है इसका रेडिएशन इस पे पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल के थ्रू मैं T1 टेम्परेचर को सप्लाई दूंगा। कैसे देखते हैं? ये है मेरा वायर, ठीक है, मैंने जैसे कि बताया आपको, ठीक है। दिस पायरोमीटर हैविंग 3 सप्लाई, व्हाट इज दैट? ब्राउन वायर, ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर, ठीक है। दिस इज ब्राउन वायर। ब्राउन वायर कहां पे लगता है? ब्राउन वायर को हम सप्लाई देते हैं बैटरी के माइनस पे, ठीक है। ब्राउन वायर कहां पे देते हैं हम? बैटरी के माइनस पे सप्लाई देते हैं, ठीक है। जो ब्राउन वायर होता है आपका, ब्राउन वायर एंड गिविंग द सप्लाई टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ठीक है। जैसे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइव वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पायरोमीटर। सी, अभी मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, इस पे सन की इंटेंसिटी आएगी। लेट्स सी, ये जो पायरोमीटर है इसमें 3 वायर होते हैं आपके। एक होता है आपका पॉजिटिव, जो होता है ब्राउन, ब्राउन इज पॉजिटिव, ब्लैक इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज ब्लू फॉर योर वोल्टेज मेजरमेंट पर्पस, ओके, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है। एंड ये जो आपका ब्राउन है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मैं इसको बैटरी पे लगाता हूँ, कनेक्शन देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन दे दिया, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक आपका जाएगा बैटरी के नेगेटिव, ठीक है। एंड इसी के साथ में इसका जो ब्लू है, ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर जिसको मैंने बताया आपको कि ये जाएगा आपके वोल्टमीटर को, ठीक है, ये जाएगा आपके वोल्टमीटर के पॉजिटिव को। तो जैसे मैंने इस वोल्टमीटर को पॉजिटिव को लगा दिया, तो okay, इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव एंड वोल्टमीटर का नेगेटिव, इस पायरोमीटर का नेगेटिव एंड
ठीक है, ये वोल्टेज नोट करो, कितना आया वोल्टेज, ये वोल्टेज आया है आपका 2.5, कितना वोल्टेज आया, लेट्स सी पायरोमीटर के हिसाब से। जैसे मैं अगर इसके सामने करूंगा बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, ओके। जैसे जैसे मैं पायरोमीटर को सन के पास लेके जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पायरोमीटर को सन के पास लेके जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पीछे कर रहा हूँ मेरा वोल्टेज कम हो रहा है, सामने कर रहा हूँ मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पायरोमीटर का जो वोल्टेज रेंज होता है, पायरोमीटर में जो वोल्टमीटर हम चेक कर रहे हैं उसका रेंज होता है आपका, रेंज होता है उसका 0 to 5 वोल्ट। कितना होता है उसका रेंज, होता है 0 to 5 वोल्ट तक होता है उसका रेंज, ठीक है। पायरोमीटर जो कैप्चर करता है आपके सन की इंटेंसिटी को वो 360 डिग्री में करता है। कितना डिग्री में करता है आपका, 360 डिग्री में करता है, टोटल 360 डिग्री में करता है, ठीक है। तो 360 डिग्री और वोल्टेज, ये दो चीजें इस पायरोमीटर में बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना क्या है, कनेक्शन समझ गया था आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पास लेके जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके गया। अब सन के थ्रू इसके ऊपर जो है रेडिएशन आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज चेक किया, सबसे पहले वोल्टेज चेक किया, कितना वोल्टेज आया इसके पास, ये वोल्टेज आया है आपका ये आपका आया है वोल्टेज ये आपका आया है वोल्टेज, कितना है 2 वोल्ट, कितना आया है आपका 2 वोल्ट, ठीक है। अभी ये वोल्टेज आया है आपका, यहाँ पर शो हो रहा है आपका, वैरी हो रहा है, तो इट इज फिक्स्ड एज सपोज 0 वोल्ट, ये वैरी हो रहा है एज पर द सन रेडिएशन, ठीक है। जैसे बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये आ रहा है आपका 2 वोल्ट, ठीक है। ये आया आपका यहाँ पे, ठीक है, इट इज समवॉट 2 वोल्ट। अभी ये 2 वोल्ट जो है, यहाँ पर 2 वोल्ट मिला आपको, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इज यू गेटिंग 'See again I will check', यहाँ पर मैं कनेक्शन लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कितनी वैल्यू। अभी हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सन का यूज किए, इसलिए इंटेंसिटी बहुत ही कम है, बट अगर एक्चुअल सन की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अभी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 81 मिलीवोल्ट। कितना वोल्ट मिला है, 81 मिलीवोल्ट। इसका मतलब 81 मिलीवोल्ट मींस 0.8 वोल्ट, मींस व्हाट, 0.8 वोल्ट। 81 मिलीवोल्ट मतलब क्या हो गया, 81 मिलीवोल्ट मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज 0.8 वोल्ट। यहाँ पे 0.8 वोल्ट मिला आपको, ठीक है। सो अभी इस 0.8 वोल्ट को 360 मल्टीप्लाई विद 0.8, ये मिला आपको यहाँ पर 288 एंड 288 क्या है आपका, 288 is the watt per meter square is the irradiation. 288 is the watt per meter square irradiation. If I check again, then see, अगर मैं फिर से चेक करता हूँ इसे, ठीक है, ये आया आपका, ठीक है, ये थोड़ी इंटेंसिटी कम है, ये यहाँ पे बता रहा है 1.2, ठीक है। अभी 1.2 बता रहा है यहाँ पे, रेडिएशन थोड़ी सी जो है इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई, 1.2 हुई, तो इसका वोल्टेज कितना बताया, तो 1.2, तो 360, हमेशा इसे 360 में मल्टीप्लाई किया जाता है। 360 में मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पायरोमीटर जो है ये पूरा 360 डिग्री कवर करता है, तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 1.02, 1 कितना आया, ये आया 367, कितना वैटमीटर, 367, ठीक है। बट
जो एक्चुअल इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है अर्थ सरफेस पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, बट हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 367 वाट पर मीटर। इसका मतलब as compared to sun radiation right now the intensity which is present here is 367 watt per meter square। बहुत ही कम है बट इस तरह से उसे फाइंड किया जाता है पायरोमीटर को, ठीक है। तो ड्यू टू दिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया पायरोमीटर की वर्किंग कैसे होती है, उसका प्रिंसिपल कैसा होता है। लेट्स गोइंग टू सी दिस नेम प्लेट एंड हियर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेम प्लेट। ओके, सी अभी हम पढ़ेंगे कि पैनल के जो नेम प्लेट होती है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स हैं मैक्सिमम पावर जो कि इस पैनल का 250 वैट है, वोल्टेज जो कि 36.8 वोल्ट है, करेंट जो कि 6.979 एम्पियर है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC जो कि 45.2 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो कि 7.28 एम्पियर है एंड टॉलरेंस है ±5%। इसके बाद सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैनल के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर है जो एक नॉर्मल पीपल होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? स्पेसिफिकेशंस आर एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज STC। STC बोलने से क्या होता है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। अब एज पर दी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स सी। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से आपका जो पावर हो, आपका जो इरेडिएशन है वो इरेडिएशन है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। कितना? 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। इट इज द इरेडियंस लेवल ऑफ दिस मॉड्यूल। ये 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर सिर्फ इस मॉड्यूल का ही जो इरेडिएशन है वो नहीं है, ये हमारे अर्थ सरफेस का ही इरेडिएशन लेवल है एज पर दी नासा। तो एज पर दी नासा व्हाट इज हैपनिंग, नासा के अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर कांस्टेंट होता है वो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर ये आता कहाँ से है? ये आता है सन से। सन से आता है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अर्थ के एटमॉस्फेयर तक उस सन का जो इरेडिएशन लेवल है वो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर ही होता है, बट उसके बाद वो उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ अर्थ के सरफेस पे जब रीच होता है तो उस समय अर्थ के सरफेस पे जो इरेडिएशन होता है वो आता है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। इसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। वही यहाँ पर मेंशन है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं इरेडिएशन। इरेडिएशन का दूसरा ही नाम होता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का दूसरा ही नाम होता है रेडिएशन, इरेडिएशन, सन इंटेंसिटी, सोलर फ्लक्स, ये सारे एक ही नेम होते हैं। ये सभी का जो मेन एम होता है वो रेडिएशन लेवल ही होता है। रेडिएशन कितना? 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर, बस सोलर कांस्टेंट ने कितना बोला था? 13 वैट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इन अ यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट एरिया perpendicular to the sun's direction at the mean distance of the earth from the sun. This is the solar constant. मीन्स 1 स्क्वायर मीटर पे आपका कितना रेडिएशन पड़ता है वो डिपेंड करता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट व्हाट इज दैट? सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इन अ यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सन्स डायरेक्शन एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। दिस इज द सोलर कांस्टेंट। अभी 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर ये आया कहाँ से, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर जो कि इरेडिएशन है वो आपका सोलर कांस्टेंट से आया है, ये सोलर फ्लक्स से आया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं AM। AM मीन्स व्हाट? यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन नेम प्लेट पे AM। AM मतलब होता है आपका एयर मास। एयर मतलब होता है आपका एयर मास। एयर मास कितना है यहाँ पर? 1.5, ठीक है। एयर मास जो डिपेंड करता है वो 1 से जो है ग्रेटर रहता है। ओके, अभी एयर मास
एम जिसे हम बोलते हैं, व्हाट इज दैट एम? एम मतलब होता है एयर मास, और एयर मास इज व्हाट? एयर मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एटमॉस्फेयर सन रेज हैव टू पास थ्रू on their way to the surface of the earth. What is air mass? Air mass is the measure, what measurement है? Air mass is the measure for what? Of how much atmosphere sun rays have to pass through on their way to the surface of the earth. Means in a short, air mass मतलब होता है path length. कौन सा path length? ये आपका sun है, ये आपका अर्थ सरफेस है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एयर मास क्या देखता है कि सन ओवरहेड में कब आया, मींस सोलर पैनल से आपके सन की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, एक प्रकार से ऐसा बोला जाए कि जब सन हमारे ओवरहेड आएगा तभी ही हम बोलेंगे कि इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, दैट्स मीनिंग मींस सोलर पैनल और सन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं एयर मास। मींस ये सन है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द एयर मास, दैट इज द एयर मास। एयर मास मींस व्हाट? एयर मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एटमॉस्फेयर सन रेज हैव टू पास थ्रू ऑन देयर वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज द एयर मास। एयर मास इसकी कैलकुलेट करते हैं 1.5। कैसे है 1.5? क्योंकि एयर मास का एक फॉर्मूला है, एयर मास डजंट हैव a unit. Okay, air mass having one formula which is 1 upon cos of theta, where theta is what? Theta is the zenith angle. Theta is the zenith angle. If I want to find the zenith angle, then first you have to understand the declination angle, inclination angle. Assume you angle, then after that zenith angle. डिक्लिनेशन एंगल की बात करता हूँ तो डिक्लिनेशन एंगल जो है वो डिफाइन होता है आपका डेल्टा से। सिर्फ मैं ये चीज़ जो है बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट इसके बारे में जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओके, जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इसके ऊपर। अंडरस्टैंड करो इतना। डेल्टा मीन्स व्हाट? इट इज डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल मीन्स व्हाट? क्या होता है? सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो लाइन होती है, ये आपका सन का सेंटर है, ये आपका अर्थ का सेंटर है। दिस इज सन सेंटर, दिस इज द अर्थ सेंटर। इसके बीच में जो एक लाइन फॉर्म होती है एंड अर्थ का खुद का अपना इक्वेटोरियल प्लेन होता है, लाइक दिस अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होता है। तो दिस लाइन and this equatorial plane, in between these some angle is formed, that is the delta is the declination angle. Then what about this theta? What we require, what we need this theta value to find this air mass, because the air mass having one formula is 1 upon cos theta. We need theta. First of all, understand that how you get the value of theta. मैं इसके तुरंत बाद ही आपको जो है विजिट प्लेटफॉर्म में लेके जाऊंगा, वहां पे विजिट में लेके जाऊंगा, और विजिट में सेम जैसे ही मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करा दिया, इस अंडरस्टैंड करने के बाद में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, और उस प्रैक्टिकल में हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिकली फाइंड द जेनिथ एंगल, practically find the inclination angle, practically find the timing at peak time of sunny hour, how to find practically that sunny hours, that angles, solar angles. So these things we have to find and calculate after this. Okay, so सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ, अंडरस्टैंड कराता हूँ कि ये जो आपका है, इसके बाद थीटा इज क्या है। अभी मैं एक अर्थ सरफेस देता हूं, दिस इज सन रेज। ओके, नाउ दिस वन इज द प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है। अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट लो कहीं पे भी, इस पॉइंट पे लोकेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, एंड
this one is our east and this one is your west. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी जैसे ही सन की रेडिएशन पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे पड़ी आपकी इस पॉइंट पे जैसे ही सन की रेडिएशन पड़ी आपकी, तो वहां से लेकर अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है आपका, उसके ऊपर का जो एंगल होता है दैट इज द थीटा, दैट इज द व्हाट, दैट इज द अल्फा, दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल, दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल। एंड उसी केस में जब सन की रेज इस पॉइंट पे फोकस करेगी एंड दिस रेज, द सन रेज, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड, व्हाट इज जेनिथ एंगल? Zenith angle is the angle which is formed in between the sun rays and the perpendicular direction of horizontal plane. ये जो horizontal plane है आपकी, इसके ऊपर में आप perpendicular direction बनाओगे, same perpendicular, तो perpendicular direction to the earth surface and in between the sun rays, ये क्या होता है आपका, यहाँ पर theta form होता है which is the zenith angle. This thing I will explain you after this topic. ओके, जैसे ही टॉपिक हो जाता है हम इस चीज को प्रैक्टिकली करने वाले हैं, अभी आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल टेम्परेचर। ये सेल मतलब व्हाट? सेल इज दी सोलर सेल। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि जो सेल होते हैं सोलर सेल, वो सोलर सेल एक्चुअली उसमें वर्किंग कैसे होती है बताऊंगा आपको। तो सेल टेम्परेचर, एक सेल का जो टेम्परेचर होता है वो सेल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है सेल का टेम्परेचर। ओके, अभी मैं नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर की बात करता हूँ। तो जो पैनल है मेरा, इस पैनल का, और जो पैनल हमने हमारे इस प्लांट में यूज किए हैं, हमने हमारे इस सोलर प्लांट में यूज किए हैं, वो नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जो है वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर की बात करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज पर फाइंडिंग द इफिशिएंसी। ये जो पैनल हमने यूज किए हैं, ये पैनल कैसे पैनल है हमारे पास? ये पैनल है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन। कैसे हमारे पास? पॉलीक्रिस्टलाइन। There are having some parts of this panels. There are some types of this panels. What are the types? एक होता है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज द मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। सेकंड नंबर पे आता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। थर्ड नंबर पे आता है आपका एमॉर्फस थिन फिल्म क्रिस्टलाइन पैनल। ओके, तो फोर्थ नंबर पे आता है आपका हाइब्रिड पैनल। ओके, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। सबसे नंबर 1 पे आता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, बट उसके लिए आपको जो है शॉर्टेज जगह चाहिए होती है, बट पॉलिक और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बट उसकी एफिशिएंसी तो बहुत थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन। बट मैंने यहाँ पे जो पैनल यूज किया दैट इज दी, और हमारे पूरे कैंपस में जो 650 पैनल्स है लगे हुए हैं, टोटल 650 पैनल्स लगे हुए हैं हमारे इस कैंपस में, वो टोटल 650 पैनल जो है वो सारे के सारे आपके पॉलीक्रिस्टलाइन है। अब पॉलीक्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो 15.58% है। ओके, बट अभी बात हम कहां पर कर रहे हैं? टेम्परेचर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे हुआ? एज पर द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एंड नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर बोलता है कि 45 डिग्री सेल्सियस। ये जो आप बैक शीट देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये बैक शीट में यहाँ पर एक कॉपर की चिप लगी हुई है, इसके अंदर में कॉपर की चिप लगी हुई है। ठीक है, अब होता ये कि ये सिलिकॉन से बना हुआ है आपका पैनल। सिलिकॉन मॉइस्चर को कैप्चर करता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी कम होती है। ओके, अब होता ये है कि ये सोलर मॉड्यूल से हमारा जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन करते हैं, वो हम जनरेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीट। कैसे जनरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीट। अब आप हीट से इसको जो है, आप हीट से इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो सोलर पैनल के थ्रू, तो ऑब्वियसली आपका ये पैनल हीट अप होगा। अब ये पैनल अगर आपका हीट अप होगा और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आपकी कॉपर की प्लेट लगी हुई है नीचे में, बैक शीट बोलते हैं इसको, यहाँ पे लगी हुई है, तो ये पार्ट आपका हीटेड होगा। और ये पार्ट अगर हीटेड हो गया तो पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो बोलता है कि अगर मेरा ये हीटअप होता है तो आपका टेम्परेचर में आपका जो है इफिशिएंसी कम होगी। कैसे?
आपका पैनल हीटर होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो पैनल में उसका इफेक्ट क्या होता है ये सुनो। आपका नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है इस मॉड्यूल का 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री सेल्सियस से अगर 1 डिग्री भी आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस है तो 46 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री भी इंक्रीज होता है, तो आपका जो पावर जो है वो -0.545 टू -0.45 तक आपका कम हो सकता है। मतलब हर 1 डिग्री पे आपका पावर -0.5% से कम हो सकता है। बट इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ पैनल। अगर ये आपका मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है तो इसका टेम्परेचर, अगर ये आपका मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है तो इस तरह के जो मॉड्यूल है उसका टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है, उसका नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके हर डिग्री के इंक्रीज होने पे, आपके हर टेम्परेचर की डिग्री इंक्रीज होने पे आपका जो परसेंटेज ऑफ पावर है वो -0.45 टू -0.5% से आपका कम होता है। अगर यही पैनल अगर आपका हाइब्रिड रहा या फिर आपका अमॉर्फस थिन फिल्म क्रिस्टलाइन रहा तो आपका ये जो पावर है वो पावर की इफिशिएंसी हर 1 डिग्री के बढ़ने से -0.2% टू -0.25% से पावर आपका कम होता है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब आप पूछोगे कि अगर सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आपको भी जो है आप पूछोगे कि सर अगर ये जो पैनल है हम बोल रहे हैं कि ड्यू टू द हीट द एनर्जी इज जनरेटेड। ओके, तो हीट बढ़ता है, अगर हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा सर, ऑब्वियसली। अगर आपका हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से पावर कैसे कम होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से पावर कैसे कम होगा? दिस द क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ तो टेम्परेचर पे है। आप बोलोगे टेम्परेचर कम होगा तो पावर तो कम होना चाहिए, पर टेम्परेचर के बढ़ने से आपका पावर कैसे कम होता है? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि लिसन, आपका वोल्टेज होता है और एक करंट होता है। ओके, सभी का अपना वोल्टेज होता है, मेरे में भी वोल्टेज है, सभी के पास वोल्टेज है। वोल्टेज मतलब क्या होता है? वोल्टेज मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। मैं अपने आप में एक रेजिस्टेंस हूं, मेरे में खुद का अपना एक पोटेंशियल है, मतलब हर चीज का अपना एक पोटेंशियल है। इस सोलर फोटोवोल्टिक का अपना एक पोटेंशियल है। बस फर्क इतना है इसमें और मेरे में कि इसकी वोल्टेज को शो करके, इसका वोल्टेज है आपका 36.8 वोल्ट ऑफ दिस पैनल, मतलब इस पैनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36.8 वोल्ट। कितना? 36.8 वोल्ट पोटेंशियल है, 36.8 वोल्ट पोटेंशियल है। बट जब तक इसमें से करंट पास नहीं होता तब तक वो पावर बताएगा क्या? नहीं। ओके, तो इसको चाहिए रेजिस्टेंस करंट फ्लो कराने के लिए। ओके, तो पोटेंशियल हर चीज का होता है। ओके, पोटेंशियल आपका हर चीज का होता है, मतलब इसका भी क्या है? अपना पोटेंशियल है। अभी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? जैसे कि इसका अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो रहेगा। अभी जैसे ही सन की रेडिएशन आती है, सन से जैसे ही सन की रेडिएशन बोलो या फिर सन की इंटेंसिटी बोलो, जैसे ही हमारे इस पैनल पे पड़ती है सन की इंटेंसिटी या फिर सन की रेडिएशन जैसे इस पैनल पे पड़ती है तो आपका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट बढ़ा तो करंट फ्लो होगा। अगर इस पैनल पे हीट बढ़ा तो आपका क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली अगर करंट फ्लो होगा उस पैनल में से तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। बट ये होगा कि आपका जो है करंट तो बढ़ते रहेगा पर इसका पोटेंशियल कम होता रहेगा, इसकी हिम्मत कम होती रहेगी। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब इसका अपना वोल्टेज, इसका अपना पोटेंशियल। अगर इसको ज्यादा ही जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर इसको मिला तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, झेलने की क्षमता कम हो जाएगी इसकी, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल अगर कम हो गया मतलब वोल्टेज इफ डिक्रीजेस एंड
इज इंक्रीजिंग, दोनों में से कोई पैरामीटर तो मेरा कम हो रहा, दोनों में से कोई पैरामीटर, मतलब पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू VI होता है। तो मेरा अगर वोल्टेज मेरा घट रहा है और करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ तो मेरा कम हो रहा है, इसका मतलब इट इज स्लाइटली गोज डिक्रीजिंग, इसलिए मेरा टेम्परेचर, हम इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका पावर की इफिशियंसी कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि वोल्टेज अपने आप में एक पोटेंशियल है, करंट तो बढ़ते रहेगा, करंट वैरिंग होगा, इसका खुद का अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल कम कैसे हुआ, क्योंकि इसको जितना टेम्परेचर चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल गया, तो इतना टेम्परेचर इसके ऊपर आ गया कि इसको और जो है ठीक है, इसको जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर मिला, इसने वो झेल नहीं पाया, तो इसीलिए इसका जो करंट है वो करंट बढ़ते रहेगा, और करंट बढ़ने से क्या होगा, आपका जो पावर है वो पावर ड्यू टू दी रिड्यूसिंग ऑफ दिस वोल्टेज, आपका पावर क्या हो जाएगा, पावर भी आपका हो जाएगा रिड्यूस, पावर रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, आपका इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो ये फंडा था कि एक्चुअली टेम्परेचर की इफेक्ट से आपका जो पैनल का इफिशियंसी है वो कम होता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, इसकी इफिशियंसी होती है 15.5% नियरली अबाउट 16% तक जा सकता है, 12 से 16% तक। मोनोक्रिस्टलाइन होता था तो उसकी इफिशियंसी 25% तक होती थी। अगर ये एमोर्फस थिन क्रिस्टलाइन होता था, कुछ हाइब्रिड होते हैं, मतलब कुछ मोल्डिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उसकी इफिशियंसी 8 से 10% की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पैनल का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, हमने पावर का बारे में पढ़ लिया, हमने एयर मास देखा, हमने सेल का टेम्परेचर देख लिया। ओके, दिस इज, ये पैनल को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है एक STC के थ्रू किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अंडर में किया जाता है। ठीक है, सो ड्यू दिस आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस पैनल। ओके, सो अभी लेट्स सी, अभी दूसरे टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पैनल मॉड्यूल। इसके पहले जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले सोलर सेल आता है, सोलर सेल से बहुत सारे सोलर सेल के कॉम्बिनेशन से और उनके सीरीज कॉम्बिनेशन से एक मॉड्यूल फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सेल्स लगे हुए होते हैं, यह आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। ये सेल के सीरीज में होने से एक स्ट्रिंग फॉर्म होती है एंड बहुत सारे स्ट्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मॉड्यूल बनता है। अभी नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ऑपरेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पैनल। होता क्या है कि ये आपका सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल पे जब सन की इंटेंसिटी पेनिट्रेट होती है, इस सोलर पैनल पे जब सन की इंटेंसिटी इसमें रीच होती है, पेनिट्रेट होती है, ये सोलर पैनल जो है आपका, दिस इज द अपर साइड इज द एन टाइप लेयर एंड लोअर साइड इज द पी टाइप लेयर। सन की रेडिएशन जब एन टाइप लेयर पे पड़ती है तो वो एक पीएन जंक्शन फॉर्म करता है। आपने जैसे कि पढ़ा होगा फिजिक्स में कि दो लेयर के बीच में एक डिफ्यूजन लेयर फॉर्म होती है, अपर साइड इज द एन टाइप लेयर एंड लोअर साइड, लोअर पार्ट इज द पी टाइप लेयर। द सोलर मॉड्यूल इज वेरी थिन, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। जब सोलर मॉड्यूल देख रहे हो, इसकी विड्थ आपको इतनी मोटी दिखनी पड़ेगी, इतनी मोटी नहीं होती है विड्थ इसकी। ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ये तो इसका लैमिनेशन है, ये तो इसकी इंसुलेशन है, बट एक्चुअली में जो आपका सोलर मॉड्यूल होता है, वो सोलर मॉड्यूल में जो आपका सोलर सेल होता है, वो सोलर सेल बहुत ही पतला होता है। इट इज़ वेरी थिन। हाउ मच थिन, कितना थिन होता है, तो कितना थिन होता है, तो ये जो आपका सोलर मॉड्यूल है, अपर पार्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल इज एन टाइप एंड लोअर पार्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल इज पी टाइप। एन टाइप लेयर जो होती है अपर साइड की, वो एन टाइप लेयर बहुत ही थिन होती है। कितनी थिन होती है, 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत थिन होती है, 0.3 माइक्रोमीटर अपर लेयर। एंड जो बॉटम लेयर होती है, जिसे मैं पी टाइप लेयर बोलता हूँ, वो पी टाइप लेयर भी थिन होती है, बट एज कम्पेयर टू एन टाइप लेयर वो उतनी थिन नहीं होती। जो लोअर साइड की लेयर है पी टाइप लेयर, वो होती है 300 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 300 माइक्रोमीटर। एंड एन टाइप लेयर कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। तो एन टाइप और पी टाइप के बीच में जो एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है जब सन की इंटेंसिटी इस एन टाइप लेयर पर पड़ती है और उसे पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट भी करना चाहिए उसको,
तो वो सोलर रेडिएशन सन की इंटेंसिटी इस एन टाइप लेयर को पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर में जाना चाहिए, इसलिए हम एन टाइप लेयर को ज़्यादा थिन रखते हैं एज कंपेयर टू पी टाइप। इसीलिए एन टाइप लेयर का जो मेजरमेंट होता है वो बहुत ही थिन होता है। कितना थिन होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। और पी टाइप कितना होता है आपका? 300 माइक्रोमीटर। अब एक्चुअली होता क्या है कि सन की रेडिएशन उस एन टाइप लेयर में पड़ी और उसने उसको पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर पे चले गया। अब डिप्लीशन लेयर तक जैसे ही वो उस एन टाइप लेयर को पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर में उसको रेडिएशन पहुंचेगा, तो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है? डिप्लीशन लेयर में एटम होता है। एटम क्या है? एटम सिलिकॉन। एटम क्या है? एटम इज ए सिलिकॉन। सिलिकॉन से याद आया, चलो सिलिकॉन के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि सिलिकॉन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सिलिकॉन मॉइस्चर कैप्चर करता है, इसलिए हमें हर शाम सोलर पैनल होने के बाद उसको हर शाम उसे वॉश करना होता है। उसे वॉश करना होता है। आप अगर उसे वॉश नहीं करोगे तो आपका जो आपकी जो इफिशियंसी है सोलर मॉड्यूल की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सोलर मॉड्यूल को हर शाम वॉश करना पड़ता है क्योंकि सिलिकॉन जो है मॉइस्चर कैप्चर करता है। सिलिकॉन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जरूरी नहीं है कि सिलिकॉन ही यूज करें, सिलिकॉन के अलावा और भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है जो कि इस सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए काम में आती है। वो होती है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, कैडमियम टेलरेट, कॉपर इंडियम डाइसेलेनेट, गैलियम आर्सेनेट, जिंक सल्फेट। ये सारी जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होती है, इससे भी हम चाहें कि इस पैनल को जो है हम इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट हमने सिलिकॉन का यूज़ किया। सिलिकॉन का यूज़ इसीलिए किया कि एज कम्पेयर टू अदर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, ये सिलिकॉन जो होता है इसकी इफिशियंसी एज कम्पेयर टू अदर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी कोई इस सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके लिए हम सिलिकॉन का यूज़ ही करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलिकॉन का यूज़ किया। एक्चुअली हुआ क्या कि सन की इंटेंसिटी इस एन टाइप लेयर पे आई और वो उसको ब्रेक डाउन करके वो उसको पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर में गई। डिप्लीशन लेयर में उसने उस एटम को ब्रेक डाउन किया। उस एटम को जो है उसने उस एटम को उस सन की इंटेंसिटी उस डिप्लीशन लेयर में गई और उसने उस एटम को ब्रेक किया। और उस एटम को ब्रेक करने के बाद ड्यू टू द सन इंटेंसिटी वो एटम मेरा ब्रेक हो गया, मतलब सिलिकॉन मेरा ब्रेक हुआ। एंड यू नो वेरी वेल कि कोई एटम जब मेरा ब्रेक होता है तो उसमें से दो चीज़ें निकलती है, वो होती है एक होती है होल एंड दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो वेरी वेल होल्स एंड इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन होता है, यू नो वेरी वेल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसे करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही हमारा जो करंट है वो जनरेट होता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है बट सिलिकॉन तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, होगा कैसे? डिप्लीशन लेयर में एटम ब्रेकडाउन हो गया, एटम ब्रेक हो गया, एटम में से दो हमारे आइडिया निकले, एक निकला आपका होल्स और एक निकला आपका इलेक्ट्रॉन। अभी वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर उसने पेनिट्रेट किया इंटेट को, डिप्लीशन लेयर को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पे समवॉट इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पे सन की इंटेंसिटी आई, सोलर पैनल पड़ी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पे समवॉट इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समवॉट सब जगह में इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। बट इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद हमें एक चीज याद आ रही है कि सिलिकॉन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सिलिकॉन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देन वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे कराएगा? वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे कराएगा? तो वो फ्लो कराने के लिए हम इस पैनल में कुछ लगाते हैं जिससे वो फ्लो करता है। क्या लगाते हैं हम? यहाँ पे आप देख रहे हो सिलिकॉन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ आपको सिल्वर की कोटिंग दिख रही है। यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर की कोटिंग दिख रही है आपको यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग। तो ये जो सिल्वर की कोटिंग होती है, ये सिल्वर की कोटिंग, इससे बोला जाता है मेटल फिंगर। इसे क्या बोलते हैं? मेटल फिंगर। तो ये जो आपकी सिल्वर की कोटिंग होती है जिसको मेटल फिंगर बोला जाता है, तो ये मेटल फिंगर इस पूरे मॉड्यूल का 15% होता है। मीन्स हम 15% से ज़्यादा हम लगाते नहीं हैं मेटल फिंगर को, उसका एक बैड इफेक्ट भी पड़ता है। अभी
मेटल फिंगर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिलिकॉन मेरा बैड बैंड ड्रॉप फिट है। अब जैसे ही मैंने इसे मेटल फिंगर लगाया, ये मेटल फिंगर लगे हुए हैं यहाँ, मेटल फिंगर जो आप लाइनिंग्स देख रहे हैं सिल्वर कोटिंग की, ये मेटल फिंगर्स लगे हुए हैं। मींस जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट होगा, ये मेटल फिंगर वी नो वेरी वेल, मेटल फिंगर वी नो वेरी वेल, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पर जनरेट होगा, तो ये मेटल फिंगर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो मेटल फिंगर क्या करेगा? वो मेटल फिंगर उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट होंगे, यहाँ पर जो मेटल फिंगर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट होंगे, वो मेटल फिंगर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि मेटल फिंगर इस पूरे मॉड्यूल का 15% होता है, 15% होता है। तो जैसे ही ये मेटल फिंगर ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ये सारे मेटल फिंगर बनकर एक पिन बनता है। मींस ये सारे मेटल फिंगर यहाँ पे कंबाइन होते हैं। यहाँ पे देखो आप, हर मॉड्यूल में यहाँ पर एक लाइनिंग होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल फिंगर होता है। यहाँ पर सारे मेटल फिंगर यहाँ पे आकर एक हो जाते हैं, सारे मेटल फिंगर यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ से एक कनेक्शन जाता है, एक कनेक्शन जाता है, और इसके नीचे में बैक, इसके इस मॉड्यूल के सबसे लास्ट में कॉपर की शीट होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी मेटल फिंगर है, इसका एक पॉइंट जो है वो एक पॉइंट एक वायर के फॉर्म में बनता है, एंड ऊपर का जो एन टाइप होता है, ठीक है, उसका एक वायर निकलता है। मींस यहाँ से एक वायर निकलता है, एंड नीचे जो होता है आपका कॉपर की प्लेट, उसका एक वायर होता है। तो वो फॉर्म करता है प्लस एंड माइनस को। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेटल फिंगर ने उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, हम उसको क्लोज कर देंगे, उस सर्किट को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो होना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेरा एब्जॉर्ब कर लिया उस मेटल फिंगर ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो कराएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। मतलब एक पीएन जंक्शन जैसे वर्क करेगा, एक पीएन जंक्शन जैसे वर्क करेगा। एज पर द पीएन जंक्शन वो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, उस सर्किट में से फ्लो होगा, तो मेरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो होगा, तो इसमें से मेरा करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सोलर मॉड्यूल में से मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सोलर मॉड्यूल की हेल्प से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन, विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन कंसेप्ट। Okay, now going to the concept, this is the wiring, this is the wiring. Inside this wiring, 4 mm DC cables is passed through from this solar module to the inverter. Every cable is going towards the inverter. Okay, means what is happening here, somewhat here addition is happened. Here is the adder, you see this is the adder, you see this is the adder. So somewhat panels connection is coming from here, and somewhat panels connection is coming from here and coming from here. The combination of both the series which is coming from this adder, this coming from the adder is go towards the inverter. ये जो सनी सेंसरिंग बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे 25 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बना हुआ है। तो इसमें से एक स्ट्रिंग जो है, ये एक आपका पैनल होगा। तो इस पैनल का, पर्टिकुलर पैनल का हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो सी कितना वोल्टेज का आता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर जब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, तो ये वोल्टेज आता है आपका सी, कितना है, इस पैनल का वोल्टेज 25, इस पैनल का वोल्टेज जो है वो आया है 26.5, ठीक है। तो 26.5 वोल्टेज आ रहा है एज पर दिस क्लाइमेटिक कंडीशन, पर एक्चुअली कितना है, एक्चुअली कितना है, सी दिस, एक्चुअली इस पैनल का जो वोल्टेज है वो है आपका 30.58 वोल्ट। कितना, 30.58 वोल्ट, ओके, और 8.18 एम्पियर। पर इस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आपका जो वोल्टेज आया है, वो वोल्टेज कितना आया है यहाँ पर, सी कितना, 27 हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पैनल का वोल्टेज जो है 27 वोल्ट है। तो अगर मैं एक कैलकुलेशन करूँ, तो आपका जो है ये 27 वोल्ट है, मल्टीप्लाई विद 25 का पैनल है, तो आपका 675 जो वोल्टेज बनता है। तो ये 675 वोल्टेज जो है, ये 675 वोल्टेज उस इन्वर्टर में जाता है, उस इन्वर्टर के एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है।
उस इन्वर्टर में लगे कितने स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग लगे हैं। उसमें से एक स्ट्रिंग जो है, उस एक स्ट्रिंग में 25 मॉड्यूल की सीरीज बनी हुई है, और वो 25 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल जो है वो राइट नाउ एज पर दिस क्लाइमेटिक कंडीशन 27 वोल्ट दे रहा है। और पूरे सीरीज का जो आपका स्ट्रिंग है, जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग का आपका वोल्टेज आया है 675 वोल्ट। कम विथ मी टुवर्ड्स द इन्वर्टर, लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट इन्वर्टर एज पर दिस सोलर फोटोवोल्टिक पैनल। ओके, लेट्स कम विथ मी इनसाइड। तो ये आपका इन्वर्टर है, इस तरह के आपके 5 इन्वर्टर के सेट बने हुए हैं इस प्लांट में। तो इस एक इन्वर्टर पे फोकस करते हैं कि क्या क्या फंक्शनिंग हुई है इसमें। अभी ये जो इन्वर्टर है, दिस इज इन्वर्टर, और ये जो है एचटी पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं मीटरिंग पैनल। ओके, तो ये मीटरिंग पैनल 2 तरह से काम करता है। एक इस इन्वर्टर को जो है वो सप्लाई देता है, ठीक है, और दूसरा इस इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करता है। चलो इंटरनल फंक्शन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जब हम इसे खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस बॉक्स में ये आपका जो है एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है कितने पोल का है, सी हियर पोल 1 2 3 पोल। तो ये कितने पोल का हो गया, 4 पोल की एमसीबी है। इसका मतलब ये 3 पोल जो है ये 3 फेज कनेक्शन है, और एक है आपका न्यूट्रल। तो ये 3 फेज 3 लाइन को जाते हैं इन्वर्टर में। ओके, और ये जो मीटरिंग पैनल है, ये एमसीबी कितनी इसका है, 63 एम्पियर की एमसीबी है। पर ये एमसीबी और भी वेराइटीज में आती है, रेटिंग्स में आती है, जैसे कि 10 एम्पियर की भी एमसीबी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस प्लान के हिसाब से इस इन्वर्टर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए था वो 63 एम्पियर की एमसीबी है। ठीक है, अभी लिसन कि अभी हम चेक करेंगे कि 63 एम्पियर की एमसीबी है, 4 पोल की है। तो ये एमसीबी जो है, ये एमसीबी के अंदर 2 चीज़ें होती है जो कि आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन और आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को जो है कवर करता है। ठीक है, तो इन्वर्टर में अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर इन्वर्टर में कभी ओवरलोड हो गया तो उस समय ये जो आपका एचटी पैनल है ये इसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाय शॉर्ट सर्किट। इसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसके अलावा इसके अंदर ओवरलोड फंक्शनिंग के लिए एक प्लंगर यूज़ किया जाता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अभी इन्वर्टर का फंक्शन ये आपको अच्छे से पता है एक बात कि इन्वर्टर को, ये इन्वर्टर इज व्हाट, इन्वर्टर इज अ पावर ट्रांसमिशन डिवाइस दैट चेंजेस फ्रॉम डीसी डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। और इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर आपका एक जो है सर्किटरी है। ठीक है, तो ये सर्किटरी के अंदर होता क्या है कि आपका जो है ये इन्वर्टर ये आपके डीसी पावर को एसी पावर में जो है वो कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है इसके अंदर, ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर ट्रांजिस्टर जो होता है इज द की कंपोनेंट इन दिस इन्वर्टर, और ट्रांजिस्टर की वजह से ही ये इन्वर्टर के अंदर डीसी पावर से एसी पावर में आपका कन्वर्जन होता है। तो सी द फंक्शनिंग ऑफ इन्वर्टर, लेट्स कम विथ मी, लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ दिस इन्वर्टर प्रैक्टिकली। Let's see the AC output power which is varying as per climatic condition. Let's check other functioning. See, we are going inside the AC energy yield. So this is the AC energy yield. In a day we have the generation is 92.37 kWh energy. In a year we have 21,779 kWh energy, and up to till date total is 162.83 megawatt hour. This is the AC energy yield. Let's see the other functioning. See this AC reactive power, line 1, line 2, line 3. Line 1 is having 52 var, line 2 is having minus 15 var, line 3 is having minus 93 var. This is also varying as per the climatic condition. अर्निंग की बात करते हैं, तो ये अर्निंग की बात करते हैं, तो ये एक इन्वर्टर एक दिन में कितना अर्न करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे इन अ डे 11.335 यूरो। इसका मतलब ये है कि 11.344 यूरो, EUR, मतलब ये EUR जो होता है
ये इंडस्ट्री की एक करेंसी की कोड होती है। मतलब एक यूरो बोलने से 86.6 रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो 86.86 जो है आपका रुपीज़ है, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 985। मतलब ये पर डे एक इन्वर्टर 985 तक की जो रुपीज़ है इसमें कन्वर्ट कर सकता है। ये मतलब अर्निंग होती है इसकी पर डे। एंड पर ईयर के हिसाब से अगर निकाल सको तो आप निकाल सकते हो 454.2 यूरो। एंड लाइक दिस टोटल इतना आया आपका। एंड सी नेक्स्ट थिंग, सेविंग कितना करता है? सेविंग ये जो CO2 गैस है आपकी, CO2 से सेविंग, तो ये जो CO2 है आपकी, ये CO2 को सेव करता है 30.223 ग्राम तक, और ईयरली ये करता है 12037 kg तक, एंड टोटल करता है 86.979 टेरा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस इन्वर्टर को स्टडी कर लिया। दिस इज फ्रोलिस इन्वर्टर। इसमें मैंने चेक किया कि पैनल का आउटपुट वोल्टेज, पैनल का आउटपुट करंट, वो जनरेशन कितना कर रहा है, भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बताया कि ये पैनल जो है ये जनरेशन कितना करता है पर आवर के हिसाब से, और इसमें एक्चुअली इन्वर्टर के अंदर ये इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी होती है। इस इन्वर्टर की जो PV जनरेशन आउटपुट कैपेसिटी होती है तो 37.8 वोल्ट की होती है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे पैनल लगाया, ये इस इन्वर्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्वर्टर वांट सप्लाई एंड ऑल्सो इट्स वांट सम प्रोटेक्शन कवर। लेट्स गो टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। लेट्स सी हाउ दिस प्रैक्टिकल हैपन। अभी हम ये देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इंक्लिनेशन एंगल, अज़ीमुथ एंगल एंड ज़ेनिथ एंगल कैसे निकाला जाता है। लेट्स सी, बहुत मजा आएगा आपको ये देखने में कि ये प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है। कम विथ मी। ये हमने यहाँ पर एक जो है निडल लिया। ओके, तो ये निडल को हमने यहाँ पे स्टैंड किया, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है शैडो आ रहा है इसकी। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब इसका शैडो यहाँ पे पड़ता है तो वो कुछ डायरेक्शन बताता है अपने को। तो मैंने अभी से 15 मिनट पहले जो एक शैडो लिया था, तो वो शैडो जो लिया था वो यहाँ पर आया था। आप देखो, मार्किंग करके रखा हो यहाँ पर, तो ये मार्किंग करके रखा, और 15 मिनट के बाद में अभी जो शैडो आया है वो शैडो आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, इस पॉइंट पे शैडो आया है। अभी राइट नाउ जो शैडो है आपका यहाँ पर पॉइंट पे आया है। तो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो है वो शैडो अभी जो है आपको मेंशन नहीं हो रहा है। एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन, एज पर द क्लाइमेट, तो अभी हमने जो शैडो देखा वो शैडो 15 मिनट पहले यहाँ पर था, और अभी जो हमने मार्किंग किया वो शैडो मेरा यहाँ पर आया है। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर आया है शैडो, मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। अभी चेक करते, 15 मिनट पहले जो मेरा शैडो का पॉइंट आया था वो यहाँ पर आया था, और 15 मिनट के बाद में यहाँ पर आया। तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये पोर्शन को हम बोलते हैं ईस्ट, और जो मेरा शैडो जो धीरे धीरे लैगिंग हो रहा है यहाँ पर आता है हमारा वेस्ट। ओके, अगर ये ईस्ट और वेस्ट का मैं एक मार्किंग बनाऊँ यहाँ पर, तो ये कुछ आता है मेरा, ये आप अगर ऐसा परपेंडिकुलर निकालो इसका, तो ये परपेंडिकुलर जो बनेगा आपका वो होगा साउथ, एंड दिस वन इज योर नॉर्थ, एंड दिस वन इज योर साउथ। ओके, तो अभी ये आपको मिल चुका है, और यहाँ पर आपको ये पॉइंटली मिला है, मैं मार्किंग करता हूँ। अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द इंक्लिनेशन। एंड सेकेंड आई एम गोइंग टू फाइंड द zenith angle, and third I am going to find the solar azimuth angle। अभी अगर आप एक डायग्राम देखो, यहाँ पे सन की रेडिएशन आती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर है मेरा, सन की रेडिएशन जब किसी पॉइंट पे फोकस करती है और वहाँ से जो एंगल फॉर्म होता है एट द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो इसे बोला जाता है इंक्लिनेशन अल्फा। एंड ये अरे से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं हम जीनिथ एंगल, मतलब थीटा। ठीक है, ये आपका जीनिथ एंगल है और ये आपका इंक्लिनेशन एंगल है। और सोलर अजीमुथ एंगल बोलने से मैं बताता हूँ कैसे होता है करके। फर्स्ट स्टार्ट विद द इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे फोकस करोगे कि ये इंक्लिनेशन एंगल है, हम निकालने वाले इंक्लिनेशन एंगल। तो यहाँ पर जो पॉइंट मार्किंग आई है, इस पॉइंट मार्किंग से जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो एंगल है आपका, ये जो आप एंगल देख रहे हो, तो
तो यहाँ से जो ये एंगल है आपका, ये रॉड का इस पॉइंट का जो एंगल होता है आपका, दिस इज दी, ये क्या है आपका, दिस इज दी इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल मतलब ये आपका इंक्लिनेशन एंगल मतलब अल्फा, ये आप देख रहे हो इंक्लिनेशन एंगल मतलब ये आपका हो गया अल्फा, ठीक है। अभी ये पॉइंट को हमने ऐसे ही रखा और इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट को हमने ऐसे रखा एंगल को और इसको परपेंडिकुलर कर दिया, इसको परपेंडिकुलर किया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो एंगल है बीच का, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल और ये जो आपका बीच का जो पोर्शन देख रहे हो स्केल का और इसके बीच का, मतलब ये जो बीच का एंगल है, ये एंगल हो गया आपका जेनिथ एंगल थीटा। और सोलर अज़्यूमिथ एंगल मतलब क्या हो गया, सोलर अज़्यूमिथ एंगल बहुत ही ईजी है समझने के लिए, बहुत ही ईजी जाता है। लेट्स सी, अभी साउथ कहाँ पर है, यहाँ पे साउथ, दिस इज द साउथ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज साउथ फेसिंग। मैं बड़ा लेंथी कर देता हूँ, तो ये है आपका साउथ फेसिंग, ठीक है। तो ये आपका साउथ है, ठीक है, ये वाला आपका साउथ फेसिंग है, ठीक है। दिस वन इज योर साउथ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग है, दिस वन इज साउथ। अभी ये जो आपका साउथ फेसिंग, मैंने यहाँ पे स्केल को रखा, तो ये आपका साउथ फेसिंग है और ये आपका नॉर्थ फेसिंग है। अभी जब इसकी रेडिएशन इस पे आती है, जिस जो शैडो पे, वो शैडो से, ये आप शैडो पे आई है, ठीक है, तो ये शैडो की लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी शैडो की लाइन है, एंड ये आपकी साउथ फेसिंग की लाइन है। तो साउथ फेसिंग की लाइन और शैडो की लाइन के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है, दिस इज दी सोलर अज़्यूमिथ एंगल, जिसको हम जो है डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल है मेरा गामा सोलर अज़्यूमिथ एंगल। तो ड्यू टू दिस वी अंडरस्टैंड वेरी वेल द इंक्लिनेशन एंगल, जेनिथ एंगल एंड सोलर अज़्यूमिथ एंगल। लेट्स गो टुवर्ड वन मोर इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, कम विथ मी, स्टॉप कर। लेट्स सी वन मोर इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पर हम जो मैंने एक जैसे प्रैक्टिकल डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने रियोस्टेट का यूज किया है, जिससे वेरिएबल रियोस्टेट, जिसको हम वैरी करेंगे तो मुझे वहाँ पे वोल्टेज मेंशन होगा, करंट मेंशन होगा। मैं रेजिस्टेंस को वैरी करके, मतलब लोड को वैरी करके, मैं अपने करंट को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ और करंट में किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है, दैट वी विल सी हियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो पैनल है आपका, दिस इज द पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, और ये पैनल का जो आउटपुट पावर है वो 75 वैट है, एंड इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है आपका 17.3 वोल्ट। सी, इसका जो वोल्टेज है, कम विथ मी, इसका जो वोल्टेज है वो है आपका 17.34 वोल्ट, और इसका जो एम्पियर है वो 4.33 एम्पियर है, एंड इसका जो पावर है वो 75 वैट है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन किया है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि सर्किट कैसा है। सी, ये जो आप देख रहे हो सर्किट, तो ये सर्किट कैसा है, ये पैनल जो है, इस पैनल को मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये पैनल को मैंने यहाँ पर रखा है। अब ये पैनल का प्लस है, ये पैनल का माइनस है, तो पैनल के प्लस को मैंने जो है वो वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज से प्लस को, एंड वोल्टेज का माइनस को पैनल के माइनस से कनेक्ट कर दिया। एंड ये जो मेरा, आपको पता है अच्छे से कि आप हमेशा करंट को जो सीरीज में रखते हो, तो ये जो प्लस पॉइंट है वोल्टेज का, इसको मैंने एम्पियर के, मतलब करंट एम्पियर के इस प्लस से मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसके माइनस को जो है मैंने इस रियोस्टेट के, जो कि वेरिएबल रियोस्टेट है मेरा, इससे कनेक्ट कर दिया, इसके प्लस से, एंड इसका जो माइनस है रियोस्टेट का, उसको मैंने कनेक्ट किया वोल्टेज के माइनस से, ठीक है। लेट्स सी कि इसका जो है आपका करंट कैसे वैरी होता है और कितना वैरी होता है। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका वोल्टेज कितना है। राइट नाउ एज पर दिस क्लाइमेटिक कंडीशन, इस पैनल का जो वोल्टेज है आप यहाँ पे देखोगे, चेक करोगे, तो वो आया है 20 वोल्ट। ये कितना आया है यहाँ पे, 20 वोल्ट, ठीक है। पर एक्चुअली इसका वोल्टेज कितना है, आपका वोल्टेज जो है वो 17.34 वोल्ट है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 21 वोल्ट तक जा सकता है शॉर्ट सर्किट। तो एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा लेवल है, तो यहाँ पर वोल्टेज आया है आपका 20.18। तो आपका फर्स्ट रीडिंग जो है ये आया है आपका वोल्टेज 20.2 वोल्ट, यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अभी आप रियोस्टेट को चेंज करोगे, आपने जैसे ही रियोस्टेट को चेंज किया, ये रियोस्टेट कनेक्शन किया है, कनेक्शन देख लो कि यहाँ पर मैंने इसके पैनल के पॉजिटिव को वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एंड वोल्टेज का जो पॉजिटिव है उस वोल्टेज के पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और एमीटर का जो नेगेटिव है उसको मैंने रियोस्टेट के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एंड रियोस्टेट का जो नेगेटिव है उसको मैंने वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ये मेरा सर्किट बना। अब इसका मैं आपने वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज है अभी राइट नाउ वोल्टेज कितना है 20.2 वोल्ट, ठीक है। एंड वो हिसाब से अगर मैं इस रियोस्टेट को वैरी करूँ, थोड़ा सा वैरी किया, यहाँ पर फोकस करिए करंट पे,
ठीक है। अभी जैसे कि आपने मैंने थोड़ा सा लोड को बढ़ाया तो मुझे करंट कितना मिला, करंट मिला मुझे 61 एम्पियर। मैंने अपने लोड को थोड़ा सा और बढ़ाया, मुझे कितना मिला एम्पियर, 67 एम्पियर। मैंने लोड को थोड़ा सा और बढ़ाया, मुझे एम्पियर मिला 82 मिली एम्पियर। मैंने लोड को थोड़ा सा और बढ़ाया तो मुझे यहाँ पे मिला 128.3 मिली एम्पियर। तो ये मैं लोड को वैरी करता हूँ, मतलब मैंने रियोस्टेट को वैरी किया, रियोस्टेट मैंने लोड को वैरी किया, तो मेरा करंट भी यहाँ पे वैरी होता है, क्योंकि लोड की वजह से ही मेरा जो है मुझे यहाँ पे करंट मिलता है। ठीक है, एज पर द लोड वी गेटिंग द करंट हियर। तो करंट मेरा क्या होता है, चेंज होता है एज पर वैरिंग दी रियोस्टेट, मतलब लोड को वैरी करूंगा तो मेरा करंट वैरी होगा। ठीक है, वोल्टेज जो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस पैनल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा जितना ये क्लाइमेट मेरा शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया। इस प्रैक्टिकल में लाइव प्रैक्टिकल कंडक्ट किया यहाँ पर कि इस तरह से जो है करंट जो है लोड को वैरी करने से आपका चेंज होता है। So thank you so much for watching this visit practical. Students, so I am going to conclude this visit. We have 172.5 kilowatt solar plant which is installed at the roof of our institute building. We have 650 solar panels which generates around 25,000 units per month, and that will feed to MSEB substation by 11 kV transmission line with the help of reverse meter and 3-phase transformer. Reverse meter we also call as net metering system. So first I cleared you that what is net metering system. What is happen in net metering system? Net metering system, in grid connected solar photovoltaic, solar energy supply in the connected load that are connected to the public electricity grid through a service connection which exports surplus energy into the grid and shortfall being drawn from the grid. Means production of surplus energy will happen when solar panels produce extra solar power than required energy. In this case what happen, this surplus power is fed into the grid during night, or we can say that when the required energy exceeds over a solar energy production, it automatically draws energy from the grid. So I hope you understand very well this solar plant visit. Thank you so much.